Hello, my sparkling souls. Welcome to my channel TT Triumph, a mystical journey of spiritual awakening. I know most of you ने मुझे personally message किया है कि मैम आपका next video आया नहीं है. It's been a long time we haven't seen you. तो I am extremely sorry. कुछ reasons के वजह से I was busy. Consultations, कुछ और parallel work which I do, तो उसमें busy थी. But जब मैं ये एक वीडियो एक सेक्शन बना रही थी, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, सडनली लास्ट मिनट एज माय इंस्टिंक्ट्स सेड के मुझे इसी सेक्शन पे पहले ये नहीं दूसरा वीडियो करना चाहिए. एंड लास्ट मिनट इंस्टिंक्ट्स जो रहते हैं, तो आई थॉट व्हाई नॉट ऑन दिस स्पेशल ओकेजन Women's Day जो है, ये all the ladies out there, beautiful lovely souls, आपके लिए ये important video है which is related, I am sure आप कहीं ना कहीं resonate करते होंगे with physical, psychological, spiritual, emotional factors को लेकर. और मुझे लगा क्यों ना मैं ये एक important video बनाऊं, remedies जो है ये सब्जेक्ट पे, एंड विच इज रियली अ क्रूशियल एंड एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. ये स्टेजेस ऑफ लाइफ है, बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मुझे लगा क्यों ना ये इम्पोर्टेंट चीज मैं शेयर करूं आपके साथ, और ये एक यूनिक सा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं, कंपाइल करूं कि जहां एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी मैं आपके साथ में शेयर करूं. Women's Day. I would like to thank 3 women, most important women in my life, where biologically I'm connected. My beautiful mother and 2 beautiful sisters. I'm so grateful to be connected. So ye 3 ladies are most important aspect in my life. My total lifelines. Apart from that, there are so many at every levels of my life. My teachers, my school teachers, my college teachers, so many female friends जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, and they have been a part of my life from my kindergarten to this stage of life. तो उनके लिए a very happy Women's Day, and thank you for being always supportive to me. And आप सबके लिए एक important वीडियो है, Women's Day, जो menstruation, menstrual cycle जो हम महसूस करते हैं, we go through. तो मुझे लगा इससे बेटर डे तो हो ही नहीं सकता है, एंड टू शेयर दी फैक्ट्स एंड क्या कुछ कर सकते हैं हम इसके ऊपर, तो कुछ रेमेडीज. बट बिफोर आई प्रोसीड, like the video, and also time to love yourself. It's just not one day on a Women's Day, but every time, especially ये जो cycle जो phase है, that time it's the most important thing to love yourself. Hit the bell icon क्योंकि ये एक important video है. Share and subscribe ताकि आगे जो interesting videos है, जो remedies को लेकर, तो आप ही का benefit होगा, बाकी सबका भी benefit होगा. So let's start and begin with what the 3 things which I mentioned: menstruation or menses or periods or the cycle. Well, ये तो माइथोलॉजी में भी कहीं ना कहीं, हिंदुइज्म में जब नवरात्रि होती है, घट स्थापना होती है, जो कलश स्थापना होती है, दिस इटसेल्फ is based on the fertility of the mother earth. लेकिन nature itself, the गर्भ जो बोलते हैं, जो कलश जो बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, that is the womb of the mother earth. And that's how it is so beautifully explained in Navratri. जैसे 9 months a mother protects the child in the womb. She carries the child in the womb. वो whole process of fertility को explain किया है in such a beautiful way. The same way stages of life को
हम महसूस करते हैं, ये सारे जो स्टेजेस है आई एम श्योर विमेन ही कर सकती है। इसीलिए हम लेडीज को सहनशील कहा गया है। इसीलिए हमें आदि शक्ति, ये जो हम एनर्जी, ये जो सारे स्टेजेस ऑफ लाइफ को हम ही एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई एम श्योर मेन इस चीज को कंप्लीट क्या एक एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते हैं। एंड you know, that is the true experience of a lady, of from adolescence of a woman to the you know, the end of the cycle, the जो हम women gynec related, ये menstruation periods related, कंसीविंग रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, ये जो स्टेजेस को हम महसूस करते हैं, तो आप रेजोनेट करते होंगे कि कितनी दिक्कतें आती है, कितने सारे चेंजेस होते हैं। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये जो मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन होता है, टैंट्रम्स थ्रो करना, इतने सारे इम्बैलेंसेस होते हैं, हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, और हमें इनिशियली पता नहीं होता है क्या ये एक फेज, क्या साइकिल है। सो द मेन आउट देयर मस्ट अंडरस्टैंड दीज स्टेजेस फॉर अ लेडी। आपके फैमिली में अगर विमेन है और ये सारे महसूस करते हैं, प्लीज बैलेंस आउट, you know, help them out in a better way to overcome them। ये एक sublime level पे होता है, जो difficult होता है explain करना, पर जो महसूस करता है तो बहुत painful होता है। So I will tell you the most important factors how to overcome, और बहुत ही आसान और important सरल तरीके हैं, और बहुत ही हमारी जिंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल वे में भी मायने रखते हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स। फर्स्टली आई वुड से one the most important thing is moon। yes, I hope आपको पढ़ने को आ रहा हो। इट इज मून, जो चंद्रमा होता है। Moon means it is the significator, the main, you know, the ruler for a womb, also the liquid in our body, also I would say the emotional imbalances, the mental health, जो psychic, ये जो हम mood swings, वो सब, तो moon is responsible। Then I would say the water in our body is governed by 75% of water। और जैसे ही हाई टाइड लो टाइड होती है, तो वैसे ही moon also is affecting and defecting our body changes, the fluids in our body। जैसे Mars is you know, responsible for blood, तो moon is responsible for the liquid in the blood, all these hormonal, the ovaries in the body and the uterus in the body, all this is governed by moon। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं मून अफ्लिक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं मून वीक है, कहीं ना कहीं मून you know, it's not in a great sign, कहीं ना कहीं ये आपको इफेक्ट करती होगी, डिफेक्ट करती होगी, तो द मून इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर चार्ट। इरिस्पेक्टिव कि आपका मून कहाँ है नहीं है, और वो सब, तो वो जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं ऑन माई ईमेल ID गिवन बिलो। So the moon is the most important कारक, जो सिग्निफिकेटर कारक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ये सारे फैक्टर्स को वीकन करता है। The second important planet is Mars। Mars, the significator, the karak which is responsible for the body organ is the blood। जो blood related problems है, the hemoglobin in our body, also the gallbladder, तो Mars also is important। तो अगर आपका Mars weak है,
on a lower degree or Mars is afflicted, कहीं ना कहीं hindrance होता है, तो ये एक issues आते हैं. The third important, so I would write down, is the second is Mars, and the third important thing, the third important planet is शुक्र. मैं कहीं ना कहीं शुक्र को भी मैं देती हूँ चार्ट में फॉर कंसल्टेशन, बिकॉज वी आर लेडीज एज अ वुमेन. शुक्र जो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब होती है, एंड शुक्र ऑल्सो गवर्न्स, रेगुलेट्स और सिग्निफिकेटर फॉर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अवर बॉडी. ऑल्सो द रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स जो होते हैं, द यूटीआई सिस्टम. तो ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के लिए, कंसीविंग के लिए, फर्टिलिटी के लिए पैरेलली कनेक्ट होता है. So yes, these are the three most important planets. It's the Moon, Mars and Venus. These are the most important planets. और इन तीनों को कैसे हम एम्पलीफाई करें, किस तरीके से हम हमारे ये प्लैनेट्स कैसे कोरिलेट होते हैं रेमेडी से, तो चलिए देखते हैं. द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रेमेडी अकॉर्डिंग टू मी इज फुट मसाज. वेल, जो फीट, हमारे पैर के जो नीचे का सेक्शन है, द हील और ये जो तलवा जो रहता है, तो वहां पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो फ्लो होती है, एक तो हमारे हैंड्स, जो हमारे बॉडी के चक्रास है, ऑल्सो द फीट, द ग्राउंडिंग एनर्जी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एक है कि एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है. सो वॉट यू नीड टू डू इज, जब भी आपको ये PMS मोड होता है या साइकिल होता है, तो आप फुट मसाज कीजिए, pamper yourself with spa, hand massage कीजिए, rub your hands so that all that body heat energy is flown out through your palms. तो hand massage is important. Apply some moisturizer, एक feel good होता है. फुट मसाज से क्या होता है कि ये जो चक्रास, जो मैक्सिमम एनर्जी फ्लो है जो हमारे हैंड और फीट में जो है, जो ब्लॉकेजेस है उसको अच्छे से ब्लॉकेजेस को क्लियर करता है, वो चक्रास को क्लेंस करता है, डिटॉक्सिफाई करता है. तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो बेयर फीट, जो जहाँ पे ग्रीन ग्रास होती है, तो वहां पे वो ग्राउंड पे चलिए. यू विल फील सूदिंग, यू विल फील रिलैक्सिंग, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है. योर हैंड्स मैनिक्योर ऑल्सो, बिकॉज ये जो है हमारा वीनस का सेक्शन है, और ये हमारा अपर मास और लोअर मास है. मार्स तो ये सारी एनर्जी को चार्ज करता है, हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी को लाता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रेमेडी इज टू हैव वाटर. हमारा साइकिल होता है तो मैक्सिमम वाटर रिटेंशन होता है, इसीलिए हम ब्लोटिंग होता है, बॉडीली चेंजेस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस फॉर्मेशन होता है. ऑल्सो कहीं ना कहीं हम हमारे इमोशंस को खो बैठते हैं. वी फील क्राइंकी, तो मून वीक होता है, तो द वाटर एलिमेंट जो होता है, तो हम रोने लगते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं. तो make sure that this is also a good remedy to feel hydrated. So the water element in our body, जो estrogen और progesterone जो levels है, hormonal levels है, वो imbalance हो जाता है. The water element which is ruled and governed by moon. So that is the reason हमें दिन में at least 7 to 8 glasses minimum, I'm saying 10 to 12 is the amount of glasses you have to have water. Moon regulates water, the fluids and moods, emotions को भी affect करता है, defect करता है. So to guard on the moon, water element is important. Also, it flushes out the waste in our body, it detoxifies. Also, I would say exercises. Well, when I say exercises, the Martian element, the fire element in our body,
जो हम जब ये साइकिल होता है तो द एनर्जी, द मार्शियन एनर्जी, दैट फोर्स इज सो हाई कि हम वो एग्रेशन होता है, एंगर, बहुत वॉलेटाइल महसूस करते हैं इनिशियल डे पे, एक टैंट्रम्स, मूड स्विंग्स, रेज ऑफ वॉइस। तो ये सारी एनर्जी हम वेस्ट करते हैं ये सारे नेगेटिव इमोशंस में। तो इट्स अ मिथ कि हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बट आई वुड से divert this energy into a right way. 30 minutes of brisk walking, you can say some exercises which are which जो हमारे body blood flow को regulate करता है। तो ये सारा जो हाई एनर्जी, मार्शियन एनर्जी, ये जो फायर एलिमेंट है, जो गुस्सा दिमाग में चढ़ जाता है, तो उससे बदले हम उसको डाइवर्ट करें विद द राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, राइट काइंड ऑफ फूड ऑल्सो। बिकॉज अगर हम फायर एलिमेंट फूड जैसे तीखा खाना और वो सब करेंगे तो ज्यादा बर्न्स, एसिडिटी और वो सब होगा। तो मेंटेन दिस एक्सरसाइज लेवल एंड द फूड इनटेक ऑल्सो, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑल्सो आई वुड से चॉकलेट्स जो एक मूड चेंजर है, चॉकलेट्स, एंड कैसे ही मुंह पे एक चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। वेल, चॉकलेट्स ऑल्सो इज द थिंग विच इज गवर्न्ड बाय planet Venus and Moon, the sweet, the sugar factor, जो sweetness हम बोलते हैं, तो this also is related and it is governed by the planet Moon and certain dairy products like ice creams, so that is governed by Moon and Venus. So why not to have a bit of chocolate? I'm not saying have it the entire cycle, but थोड़ा बहुत तो cheat जरूरी है, because see this time the level of insulin also fluctuates in our body. तो कहीं ना कहीं that sugar level drop हो जाता है और sugar cravings होती है. So a bit sugar intake is important to balance. You need to guard on the right proportion of the sugar intake also. Say amplify your Venus, beautify yourself. Why not to wear some good clothes? Hygiene is important. हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, हाइजीन, जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको क्लीन की रखिए। बिकॉज जो हम हमारे सेल्फ को अगर क्लीन रखते हैं, कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का वास होता है हमारे अंदर, माँ का वास होता है। तो गॉडेस इज देयर विद इन अस एंड द आदि शक्ति व्हाट वी कॉल, एंड दिस एनर्जी, तो वी डोंट वांट दैट डिस्कम्फर्ट है, अनहाइजीनिक फेज है, तो हम सल करके एक जगह पे ककून की तरह बैठे, तो वो एनर्जी को लेवल को लेकर हम सैड रहेंगे, तो हमारी अंदर की एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी है, वो भी हमको कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं रखेगी। तो एनर्जी लेवल को हाई रखे। वो कैसे? जैसे कि वेयर गुड क्लोथ्स, या तो फिर डू शॉपिंग जो हमारे मूड्स को चेंज करता है। ऑल्सो you can wear some good makeup. Men जो ये नोटिस कर रहे हैं, ये जो वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप अपने फैमिली में जो लेडीज है उनके लिए आप कॉम्प्लीमेंट कीजिए, पैम्पर कीजिए, स्पेशली ऑन दिस डे एंड ऑल्सो अदरवाइज जो लेडीज ये साइकिल को फेस कर रही है, जस्ट लाइक द मून हैज दीज फेजेस, women also have these phases. जैसे कि बारिश के टाइम पे अचानक से बादल का फॉर्मेशन होता है, वो गड़गड़ाहट होती है, फिर वो एक सडन तेज बारिश होती है। द सेम थिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है आप लोगों को समझना, पर मैं कहती हूँ आपको भी एक फैक्टर टू हेल्प आउट। अभी
पहले के जमाने में ये सब टैबू होता था, एक टॉपिक को लेकर हम खुल के डिस्कस नहीं करते थे। बट नाउ इट्स नॉट द सेम व्हेन यू से मेन एंड विमेन ऑन एन इक्वल लेवल। तो आप लोगों को भी समझना होगा, और ये आसान नहीं है जो हम ये चीज महसूस करते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी को थायराइड होगा, पर ये उससे भी हायर लेवल है जो चेंजेस होते हैं, स्पेशली जब भी प्रेगनेंसी साइकिल, कंसीविंग के लिए। तो ये जो सारे साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, तो आपको भी ये बॉडीली चेंजेस, ये इमोशनल चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। और एक यू ऑल ऑल्सो हैव टू बी द पार्ट टू बी a better partner, a better person in the family। आपको भी एक मदद करनी होगी, उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट कीजिए। एक लेडी दूसरी लेडी को भी कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हो ये फीलिंग को। तो प्लीज ये ऑल्सो अलग बात है कि अगर आप कहीं कुछ अच्छा बोलते हो दूसरी लेडी के लिए, तो आपका मून और वीनस भी स्ट्रेंथन होता है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, डू राइट थिंग्स विच आर नेसेसरी, बिकॉज मेन आप नहीं जानते हो कि ये किस तरीके से महसूस, किस तरीके से ये इमोशंस जो होते हैं, जो मेनोपॉज के टाइम पे जो लेडीज जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये जो या तो फिजिकल फैक्टर्स, हेयर फॉल, पिंपल्स, एक्ने, तो ये सब हार्मोनल इम्बैलेंसेस एक आसान नहीं है। ये एक ऐसा नहीं है कि चलो एक दिन में या एक महीने में ही खत्म हो जाएगा। दैट टेक्स a little longer time। तो आपको भी इसका योगदान और कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस आउट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट दैट मेन हु आर लिसनिंग एंड व्यूइंग दिस वीडियो, आप भी सपोर्ट कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर भी लेकर आता है एक लेडी के लिए कि हाँ, मेरा जो फैमिली में जो मेंबर है, मेल मेंबर है, वो समझते हैं या वो भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव है इस चीज को लेकर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 और रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो है ये निवारण, जिनके पीछे है एस्ट्रोलॉजिकल का कारण। वेल, एक तो जरूरी बात है कि इम्पोर्टेंट डे विमेन्स डे है, तो हम जो कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, तो हमारे आसपास फॉर एग्जाम्पल जो हमारे घर पे मेड्स है, फीमेल सर्वेंट्स है, या हाउस हेल्पर्स है, या कुक्स है, वो भी ये सेम लेवल से फेस कर रहे हैं। ऑल्सो उनकी डॉटर्स। तो क्यों ना इस दिन या जो जिनका ये प्लैनेट शुक्र, मून या मार्स वीक है, तो प्लीज आप भी ये रेमेडी कीजिए एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज, स्पेशली मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो कुछ डेज के लिए आप प्लीज कीजिए। व्हाई नॉट टू गिफ्ट अ हैम्पर ऑफ अ सैनिटरी पैड और सैनिटरी नैपकिन और टैम्पून्स, जो भी आपका बजट है, जो भी आपका लेवल है। देखिए, हम ये हाइजीन और ये सारे चीजों को लेकर हम इतने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए भी ये सारा इम्पोर्टेंट है। गिव देम नॉलेज, गिव देम ये गाइडेंस, ये जो उनके मिथ्स है, तो उनको भी आप एक एजुकेट कीजिए इनको ये सारी चीजों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी वीनस, ये मून, वीनस और मार्स को स्ट्रेंथन करेगा। एंड जो मैं हर बार बोलती हूँ कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल रेमेडीज ऐसे ही, बट क्यों ना हम कार्मिक वे में भी उसको बैलेंस आउट करें, एज आई ऑलवेज से टू मॉडिफाई आवर कार्मिक बैलेंस। तो
क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये चीज को रेजोनेट करते हैं, उनकी भी लाइफ में ये सब चीजें होती है। और बहुत सारे हैं, हम जहाँ पे काम करते हैं लेडीज या मदर्स जो है वो इतना सारी मल्टीटास्किंग करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे घर पे काम करते हैं, ये सारी चीजों को सफर करते हैं। तो क्यों ना इनके लिए भी कुछ किया जाए, एक हैम्पर विद लॉट ऑफ चॉकलेट्स, उनको भी ये एक पैकेज, ये अच्छा सा हाइजीन पैकेज उनको दे, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। द सेकेंड इम्पोर्टेंट रेमेडी, अगर ये नहीं कर सकते तो यू कैन ऑल्सो गिव फ्रूट्स, स्पेशली पोमोग्रेनेट, जो है मार्स का कारका, विच ऑल्सो पोमोग्रेनेट इज ऑल्सो रूल्ड बाय प्लैनेट मार्स। देखिए, बहुत ही खूबसूरत बात है कि पोमोग्रेनेट जो हमारे आयरन और हेमोग्लोबिन को लेवल अप करता है, हमारे ब्लड को एक ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेमोग्लोबिन लेवल को रेगुलेट करता है। तो पोमोग्रेनेट आप दान कीजिए कुछ दिन, एटलीस्ट ऑन अ मंडे और ट्यूसडे और ऑन फ्राइडे, स्पेशली ऑन ट्यूसडे जो मार्स का दिन है, मंगलवार। या तो फिर आप डेट्स, खजूर, ये भी दे सकते हैं। जो फीमेल्स है, स्ट्रीट गर्ल्स है, या तो अगेन आपके हाउस हेल्पर्स है, देखिए ये भी अगेन हमारे बॉडी के जो आयरन लेवल्स है, हेमोग्लोबिन लेवल्स है, उसको भी ये एम्पलीफाई करता है, रेगुलेट करता है, उसको भी गवर्न करता है। एंड वीनस इज द कारका फॉर डेट्स, जो द ब्राउन डेट्स विच आर देयर, so that is also governed by planet Venus, and why not to do that thing? And trust me, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बारीकी चीजें हैं, तो हमारी सोल सेटिस्फैक्शन भी होगा, प्लस उनके भी खुशियां मिलेगी, उनको भी ये अच्छा लगेगा कि कुछ किया है, हमने उनके लिए केयर किया है। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज डू दिस। सो व्हाई नॉट टू डू दिस स्पेशल थिंग्स and also amplify and strengthen our planets। तो यही सारी रेमेडीज थी। अगले वीडियो में मैं जरूर लेकर आऊंगी इम्पोर्टेंट रेमेडीज जो रेमेडी सेक्शंस में है। तब तक के लिए आई वुड से एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड।